السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں خوش بھی ہوں گے، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ تو آئیں جی، ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ ناول کا نام ہے اسیر طلب، اور اس ناول کو لکھا ہے ہبا خان نے۔ اور ناول شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی پیاری سی ریکویسٹ، جلدی جلدی سے جیسے ناول ختم ہوتا ہے نا، اور آپ نے اس کے فوراً بعد ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور پیارا پیارا تھا نا ایک ایک کمنٹ کرنا ہے آپ نے کہ دل خوش ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ جو نئے آنے والے ویورز ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، تاکہ میں نئے اچھے اچھے ناول لے کر آؤں اور آپ اس سے لطف اندوز ہو سکیں، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ شعیب خان، ایان اور شناور تینوں جرمنی کے ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ انہیں حسام کا انتظار تھا کہ وہ کب تک جرمنی پہنچے گا۔ 15 سے 20 منٹ کا انتظار کرنے کے بعد حسام بھی جرمنی کے ایئرپورٹ پر پہنچ چکا تھا۔ اس کو ساتھ لیتے ہی ان سب نے کار کا رخ اس ہوٹل کی جانب کیا جہاں زورید خان ٹھہرا ہوا تھا۔ کار سے باہر نکلتے ہی اس قدم بڑھاتے ریسپشنر کے پاس گئے اور زورید خان کے روم کا پوچھا۔ جیسے انہیں روم کے بارے میں بتایا، وہ سب تقریباً بھاگتے ہوئے روم کی جانب گئے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور یہ چیز انہیں اور زیادہ پریشانی میں مبتلا کرے گی۔ مکمل طور پر دروازہ کھلا تو کمرے کا حلیہ حد سے زیادہ بگڑا ہوا تھا۔ بیڈ کی چادر زمین پر، کرسیاں الٹی ہوئی، ڈریسنگ ٹیبل کا آئینہ ٹوٹا ہوا تھا۔ کمرے کی کوئی ایک چیز بھی سلامت نہیں تھی۔ زورید، حسام اپنے جگری یار کو پکارتے ہوئے واش روم کا دروازہ کھولا، وہاں پر بھی کوئی نہ تھا۔ ایان نے بالکنی کا دروازہ کھولا جو ویران تھا۔ شعیب خان اپنا سر تھامے پریشانی سے کمرے کو دیکھ رہے تھے۔ شناور خان نے ان کا کندھا تھپتھپایا، جیسے حوصلہ دینا چاہ رہا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سر، کیا ہوا؟ ہوٹل کا مینیجر روم میں داخل ہوا۔ حسام اسے دیکھتے ہی اس کی جانب لپکا اور گریبان سے پکڑ لیا۔ حسام، کیا کر رہے ہو؟ ایان نے اسے مینیجر سے دور کیا اور اسے پیچھے کھڑے رہنے کا اشارہ کر کے مینیجر کی طرف متوجہ ہوا۔ ہمیں اس کوریڈور کی اور ہوٹل کے گیٹس کی سی سی ٹی وی ویڈیو چیک کرنی ہے، ایان نے اپنا لہجہ پرسکون رکھتے ہوئے کہا۔ وہ جلد بازی میں کوئی غلط قدم نہیں اٹھا سکتے تھے۔ جی سر، میں دکھاتا ہوں۔ وہ سب مینیجر کے پیچھے چلے گئے۔ جب وہ سب اس روم میں پہنچے جہاں تمام کمپیوٹر کی سیٹنگ کی گئی تھی، مینیجر نے جب چیک کیا تو اس کوریڈور اور گیٹ کی کچھ ویڈیو غائب تھیں۔ ویڈیو کہاں ہے؟ شناور اور حسام اچانک مینیجر کا گریبان پکڑ کر چلائے تھے۔ ایان بھی خونخوار نظروں سے مینیجر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ سر، ہمیں نہیں معلوم فوٹیج کہاں گئی؟ مینیجر ڈر کر بولا۔ اس کا جسم کپکپا رہا تھا۔ ایان نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس کی جانب دیکھا۔ انسان تب اس قدر گھبراتا ہے جب وہ جھوٹ بول رہا ہو۔ آرام و سکون سے بتا دو، فوٹیج کیوں ڈیلیٹ کی تم نے؟ حسام نے شعلے برساتی نگاہیں مینیجر پر ٹکائی۔ ایان و شناور تو اس قدر غصے میں تھے کہ مینیجر کی جانب دیکھ رہے تھے جیسے آنکھوں سے ہی اس کا قتل کر دیں گے۔ وہ ایک نقاب پوش آیا تھا، اس نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی اگر میں یہ فوٹیج ڈیلیٹ نہ کرتا، مینیجر نے ڈرتے اور کانپتے ہوئے کہا۔ حسام اور شناور نے کئی مکے اس کے چہرے پر مارے اور اسے دھکا دے کر وہاں سے چلے گئے۔ شعیب خان بھی ان کے پیچھے باہر گئے۔ کار میں بیٹھنے لگے تو حسام نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ماموں، میں نے ایک ہوٹل میں روم بک کروایا ہوا ہے، اب وہاں جائیں، ہمارے ساتھ جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ شعیب خان نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ ان سب کے ساتھ جانا چاہتے تھے، لیکن سب لڑکوں نے زبردستی انہیں ہوٹل میں بھیج دیا۔ جلد از جلد زورید کے فون کی لوکیشن ٹریس کرو، حسام نے موبائل اٹھا کر کال کرتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ کتنی دیر وہ انتظار کرتے رہے؟ تقریباً 2 گھنٹے بعد انہیں زورید خان کی لاسٹ لوکیشن ملی۔ لوکیشن ملتے ہی ایان نے کار کی سپیڈ حد سے زیادہ تیز کرتے انہیں اسی جگہ کی لوکیشن ملی تھی۔ وہ ویران جگہ پر بنے گودام کی تھی۔ چیئر پر بٹھا کر اسے باندھا گیا تھا۔ ابھی اٹھ جا، کتنا سوئے گا؟ ایک آدمی اس کے چہرے پر پانی سے بھرا جگ پھینکتا ہوا چلا کر بولا۔ زورید خان جو کل سے بے ہوش تھا، اس نے اپنی موندی آنکھیں کھولی۔ سر بہت زیادہ بھاری ہو رہا تھا، تقریباً 1 دن سے زائد کرسی پر بیٹھ کر گردن اور کمر دونوں اکڑ چکی تھی۔ سر میں بے تحاشا درد، سرخ آنکھیں، کچھ پل تو اسے سارا منظر دھندلا سا نظر آیا۔ ہوش سنبھالتے ارد گرد کا جائزہ لیا، خود کو رسی سے بندھے دیکھ دماغ کے پردوں پر سارے مناظر کسی فلم کی طرح چلنے لگے۔ کون ہو تم لوگ؟ چھوڑو مجھے۔ آواز میں غصہ، لڑزڑاہٹ، ڈر واضح تھا۔ چھوڑ دیں گے تجھے، لیکن تب جو تو اس پیپر پر سائن کرے۔ دونوں نقاب پوش ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے زورید کی جانب ایک پیپر بڑھا کر بولے۔ نہیں، میں نہیں کروں گا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ نہیں جانتا تھا یہ کون لوگ ہیں جو اسے اٹھا کر لے آئے ہیں، لیکن وہ اتنا ضرور جانتا تھا کسی غلط مقصد سے ہی انہوں نے اسے کڈنیپ کیا ہے۔
लगता है तुझे अपनी जिंदगी अजीज नहीं। उस नकाब पोश ने अपनी जेब से गन निकाला और जुनैद खान के सर पर तान दिया। साइन करते हो या नहीं, तेरी खोपड़ी उड़ा दूं। वो नकाबपोश तैश में चीखते दिमाग पर रखे गन का दबाव बढ़ाने लगा। पल भर में जुनैद खान की आंखों के सामने एक नाजुक सरापा आया। वो उसकी खानम थी। वो जानता था यकीनन उसने रो रो कर खुद को अपनी हालत पागलों वाली बना ली होगी। आंखें मूंदे उसने दर्द से एक गहरी आह फिजा के सपुर्द की और अपनी झोली में रखे पेपर की जानिब मतवज्जो हुआ। ये कौन से पेपर्स हैं? तुम लोग किस मकसद से मुझसे इस पेपर पर साइन लेना चाहते हो? इतनी आसानी से वो हरगिज साइन नहीं कर सकता था। उसके पूछने पर इन दोनों नकाबपोश ने फिर से एक दूसरे की जानिब देखा। जब से जुनैद खान से कुछ फासले पर खड़ा दूसरा नकाबपोश गुस्से में इसकी जानिब बढ़ते कुर्सी को एक जोरदार लात मारी कि जुनैद खान कुर्सी के साथ ही बंधे सर के बल बंधे सर के बल फर्श पर गिरा। आह, मुंह से दर्द के बायस इसकी बरामद हुई। साले, तुझसे जो कहा जाता है वो ही कर, ज्यादा बकवास मत कर। हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं है तेरी बकवास सुने। बेदर्दी से उसे दोबारा से उठाया गया। उस नकाबपोश ने सख्ती से माथे पर बिखरे जुनैद खान के बाल मुट्ठी में जकड़े। पहले मुझे बताओ ये पेपर किस चीज के हैं, फिर साइन करूंगा। सर से बहता खून उसके चेहरे पर लड़कियों की तरह की सूरत में बहने लगा। मेरा दिमाग मत खराब कर लड़के, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। वो नकाबपोश आदमी शदीद गुस्से में जुनैद खान के चेहरे पर मुक्के बरसाने लगा। मैं हरगिज पेपर पर साइन नहीं करूंगा जब तक मुझे ये मालूम ना हो जाए कि ये किस चीज के बारे में है। जुनैद खान इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वो चाहे लाख उस पर जुल्म करता, लेकिन वो बिना जाने पेपर पर साइन नहीं कर सकता था। तू साइन कर रहा है या तेरी खोपड़ी उड़ाए? एक नकाबपोश ने उसकी गर्दन दबोचते हुए सफाके से कहा। सामने भी जुनैद खान था। उसने भी अपनी आंखों में वहशत लिए उस नकाबपोश की जानिब देखा। दोनों नकाबपोश ने एक दूसरे की जानिब देखा क्योंकि जुनैद खान ढीठ बना बैठा था। उसे मार भी नहीं सकते थे जब तक साइन न कर दे। ये इस प्रोजेक्ट के टेंडर के पेपर हैं जो तुम्हें कल दिन में मिला है। एक नकाबपोश ने जुनैद की आंखों के सामने वो पेपर किए। मैं ये टेंडर तुम लोगों के हवाले नहीं करूंगा। हाथों को मरोड़ते हुए जैसे रस्सियों में से अपने हाथ निकालने की कोशिश की। तो फिर तो जान से जाएगा। ठा की आवाज के साथ एक नकाबपोश ने जुनैद खान के कंधे पर गोली मारी। उसने सख्ती से आंखें बंद की। दर्द हद से ज्यादा बढ़ने लगा। खून बहकर उसके पूरे बाजू को लाल रंग में रंग गया था। अब चुप करके इस पर साइन करो, नहीं तो अगली गोली तेरे दिमाग में मारूंगा। नकाबपोश जुनैद के चेहरे पर थप्पड़ मारने लगा। जब उसका एक आदमी गोदाम के अंदर दाखिल हुआ। बहुत गोदाम की तरफ दो कार बहुत स्पीड से आ रही हैं। अपने सारे आदमी को गोदाम के बाहर से ही खड़े कर दो। इस कार में मौजूद एक भी आदमी जिंदा नहीं रहना चाहिए। अगर जिंदा बच भी गया तो वो गोदाम के अंदर दाखिल ना हो पाए। नकाबपोश उस आदमी की बात पूरी होने से पहले ही फंकारा था। दूसरे नकाबपोश ने जुनैद की गर्दन पकड़ी हुई थी। गोदाम से कुछ दूरी पर अयान खान ने कार रोक दी। तीनों एक साथ कार से बाहर निकले और अपनी गन लोड कर ली। दूसरी गाड़ी पुलिस ऑफिसर की थी। वो सब झाड़ियों के पीछे छुपे हुए थे ताकि उन्हें कोई देख ना पाए। हसाम अपनी गन का रुख मेन गेट पर खड़े गार्ड की तरफ किया और सीधा उसकी पेशानी पर गोली मारी। इससे कबल गार्ड कुछ समझ पाते तीन पुलिस कांस्टेबल ने भी फायरिंग शुरू की। अयान और शनावर ने भी फायरिंग शुरू कर दी। गार्ड को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गोलियां चल किस जानब रही हैं। 10 मिनट के अंदर इन सब ने वहां खड़े 40 गार्ड्स को खत्म कर दिया। गोलियों की आवाज सुनकर वो दोनों नकाबपोश समझ गए कि जुनैद को बचाने के लिए उसके भाई यहाँ पर आ गए हैं। वो लोग गार्ड्स को खत्म करते ही गोदाम के अंदर की जानिब भागे। सामने का मंजर देखकर एक पल के लिए इन तीनों के होश उड़े। इन दोनों नकाबपोश ने अपनी गन जुनैद खान की पेशानी पर रखी हुई थी। अगर तुम तीनों में से किसी ने भी गोली चलाई तो तुम्हारे इस भाई को खत्म करने में हम एक पल भी नहीं लगाएंगे। एक नकाबपोश बोला और अपनी उंगली ट्रिगर पर रख दी। जुनैद जो नीम बेहोशी में कुर्सी से बंधा हुआ था, उसके लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट रखना हुई। वो जानता था उसके भाई पहुंच जाएंगे उसे बचाने के लिए। उसका ऊंचा सर अचानक से गर्दन पर लड़क गया। अपनी गन नीचे फेंक दो, दूसरा नकाबपोश बोला। तो शनावर और अयान के साथ पुलिस कांस्टेबल ने अपनी गन नीचे फेंक दी। हसाम ने अपनी गन नीचे ना फेंकी और जरा सा झुककर जमीन पर रखने लगा। इससे कबल वो अपनी गन जमीन पर रखता अपना दूसरा हाथ पीछे की जानिब ले जाकर दूसरी गन निकालकर दोनों गन से एक साथ गोलियां चलाकर इन दोनों नकाबपोश की पेशानी पर जा लगी। उसी पल इन दोनों का बेजान वजूद जमीन पर गिर गया। वो तीनों भागकर जुनैद के पास गए और उसे रस्सियों से आजाद किया। उसे खड़े करके अयान उसके गले लगा। पीछे से हसाम और शनावर ने भी इन दोनों के गिर्द हिसार बना लिया। वो चारों कई लम्हे इसी हालत में खड़े रहे। जब पीछे हुए तो इनका ध्यान जुनैद के कंधे की जानिब गया। जिसने ये सब किया है उससे कुत्ते की मौत मारूंगा। हसाम ने अपने जिगरी यार के कंधे से खून निकलते देखकर दिल में तहिया किया और तीनों जुनैद को वहां से लेकर हॉस्पिटल चले गए। जुनैद, ये सब किसने किया है?
शनावर ने दुरेद की जानिब देखते हुए पूछा तो उसने कंधे उचका दिए। वो नीम बेहोशी में था, उसके कंधे में शदीद किस्म का दर्द हो रहा था। हसाम, तुम्हें इन दोनों को मारना नहीं चाहिए था। हमें कैसे पता चलेगा कि ये सब किसने किया है? शनावर कुछ तौक़ुफ़ के बाद उसकी जानिब देखकर बोला। कुछ ही देर में पुलिस वालों की मदद से उन्होंने दुरेद खान के भारी वजूद को थामा और गाड़ी तक ले आए। अयान अपनी शर्ट उतार दे इसके कंधे पर बांध गया। अयान अपनी शर्ट उतारकर उसके कंधे पर बांध दिया, जिससे खून हद से ज्यादा बह रहा था। शनावर दुरेद खान के दूसरे जानिब बैठा था, जबकि हसाम रैश ड्राइविंग कर रहा था। मेरे लिए ये सब पता लगवाना मुश्किल नहीं है। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी था दुरेद को बचाना। हसाम हद से ज्यादा कार तेज स्पीड में चला रहा था ताकि जल्द अज जल्द वो हॉस्पिटल पहुंच जाए। अयान, तुम घर कॉल करके बता दो कि दुरेद हमें मिल गया है, वो ठीक है। रिजवाना चाची की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, साथ मुंतहा की भी। इन्हें तसल्ली होगी कुछ। जनावर खान ने हाथ जुरैद खान की गर्दन से ले जाते अयान से उसकी शर्ट लेते जुरैद खान के खून बहते कंधे पर कपड़े को उस पर रखा और अयान ने घर वालों को कॉल कर और अयान को घर वालों को कॉल करने का कहा। हसाम, तुम शोएब चाचा को कॉल कर लो और एड्रेस भेजो ताकि वो भी हॉस्पिटल सीधा आ जाए होटल से। शनावर की बात पे हसाम खान ने हामी में सर हिलाते शोएब खान का नंबर डायल किया। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। मेरे बच्चे का कुछ पता लगा? कहाँ है जुरैद खान? दिलदार खान की परेशानी से भरी आवाज दूसरी जानों से गूंजी तो अयान खान मुस्कुराया। वाकई जब औलाद सुकून में ना हो, माँ बाप को सुकून बिल्कुल भी नहीं मिलता। इसलिए तो माँ बाप का दर्जा इतना बड़ा होता है। बाबा फिक्र ना करें, जुरैद बिल्कुल ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें मिल चुका है। अब घर में सबको बता दें और भाभी और मोरे को भी, ताकि उन्हें तसल्ली हो। इस वक्त तो हम हॉस्पिटल जा रहे हैं क्योंकि जुरैद खान को गोली लगी है। पाकिस्तान आकर फिर आप सबको सारी बात बताएंगे। तो क्या गोली? या अल्लाह, खैर कैसे? दिलदार खान की आवाज में खौफ और एस्तराब था। अयान खान ने फौरन अपने बाबा की परेशानी को महसूस किया। बाबा, परेशान ना हो, गोली लगी है मगर कंधे पर, वो नीम बेहोशी में है। ज्यादा खतरे की बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, उसने नरम लहजे में कहा। और इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। दिलदार खान को मजीद तसल्ली देने के लिए अयान ने कहा। लेकिन अयान, ये कैसे हुआ? कहाँ था जुरैद और किसने ये किया? दिलदार खान ने सवाल किया। उनकी आवाज में अभी तक घबराहट थी। बर वक्त हम गाड़ी में हैं बाबा और हॉस्पिटल जा रहे हैं। घर पहुंचकर सब बताता हूँ, अयान खान ने नरमी से कहा। मेरे बच्चे का ख्याल रखना अयान। बाबा, आपकी दुआएं और मोहब्बत ही हमारा हौसला है। लाला और मैं हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह। हॉस्पिटल पहुंचकर मैं आपको कॉल बैक करूंगा, अयान खान ने मुस्कुरा कर कहा। याद से करना कॉल, दिलदार खान ने कहा और फोन बंद करते हुए कुछ सुकून महसूस किया। वो जानते थे सब भाइयों का रिश्ता काफी मजबूत है और वो एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। मोटो सुनो, आदिल जो किसी जरूरी काम से बाहर गया हुआ था, घर में दाखिल होते हुए और होते हुए सबको पुकारने लगा। जैसे किचन में खड़ी नजर आई बनाते हुए। जी हाँ, क्या हुआ? वो चूल्हे की आंच धीमी करके उसके पास आकर बोली, जिसने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था। ये लो, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। वो हाथ में पकड़ा शॉपर उसकी जानिब बढ़ाकर बोला, जैसे उर्वा ने जल्दी से थाम लिया और सवालिया नजरों से उसे देखा। आदिल ने उसे आंखों से इशारा करके शॉपर को खोलने का कहा। जैसे उर्वा ने शॉपर को खोला तो अंदर एक खूबसूरत ब्रांडेड मैक्सी रखी हुई थी। उसकी नजर फौरन उस पर पड़ी और दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई। वो मैक्सी हल्के पिस्टल रंग की थी, जिस पर नरम नरम सी कढ़ाई और चमकदार मोतियों का काम हुआ था, जो उसकी खूबसूरती को और निखारता था। उसकी आस्तीनों पर बारीक फीते का काम किया गया था और उसका दामन नीचे की जानिब फैला हुआ था, जैसे खूबसूरत ख्वाब जो हकीकत का रूप धार कर सामने आया हो। आदिल नजरें उठाए मुस्कुराते हुए फकत उसके चेहरे के तासुरात जांच रहा था। उर्वा ने वो मैक्सी हाथ में थाम कर शक्की नजरों से उसकी जानिब देखा और फिर एक पल के लिए वो दम बखुद रह गई। उसके दिल में एक अजीब सी मुस्कुराहट उभरी, मगर साथ ही थोड़ी शर्म भी महसूस हुई। वो नजरें झुकाते हुए आदिल खान की जानिब देखकर कहा, खैरियत है? कहीं बुखार तो नहीं चढ़ गया आपको? वाकई ये मेरे लिए? उसकी आवाज में मोहब्बत और हैरत का इम्तिजाज था। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, फिट फाट हूँ। कोई शक है क्या? भला गुस्सा करो तो भी बीवी को मसला, प्यार करो तो भी बीवी को मसला। आदिल उसको घूरते हुए बोला, जैसे जिसे हजम नहीं हो रहा था उसका इतना अच्छा रवैया। और वह को शर्माते हुए मैक्सी को दोबारा उठाया और उसकी नरम साख्त पर हाथ फेरा। उसके दिल में खुशी की लहर थी कि आदिल ने उसके लिए इतना खूबसूरत तोहफा मुंतखब किया था। वो दोनों एक लम्हे के लिए खामोश हो गए, लेकिन उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत का गहरा पैगाम छुपा था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर भी आप ये लाए हैं, लेकिन ऐसा तो कोई फंक्शन है नहीं जिसमें
ये मैं पहनूं? वैसे भी काफी टाइम हो गया इस घर में रह रहकर मैं बोर हो चुकी हूँ। वो गंदा सा मुंह बनाकर बोली। आदिल खान से पंगा ना लेती तो यहाँ कैद न रहती। जिंदगी के तल्ख लम्हात को याद करते वो धीमा सा मुस्कुराया। और जरूरी नहीं कि कोई फंक्शन या शादी वगैरह में तुम ये पहनो, अपने बंदे को खुश करने के लिए भी पहन सकती हो। वाकई अगर तुम पहनो तैयार होकर मुझ पर अपने हुस्न का जादू बखेरोगी तो मैं पागल हो जाऊंगा। वो उसे सर तपांव घूरता बेबाकी से बोला। और उर्वा सुर्ख होती हुई नजरें झुकाकर अपने पाँव को देखने लगी, जैसे उससे शरीफ तो कोई है ही नहीं। हाँ हाँ, मोटो ब्लश कर रही है। वो उसे जिच करने वाले अंदाज में बोला। आदिल तंग ना करें, मैंने बिरयानी बनाई है, मैं निकालती हूँ, फिर मिलकर खाना खाते हैं। ओए मोटो, बिरयानी को छोड़ो, इधर आओ तुम। उसे बाजू से थामे झटके से अपनी जानिब खींच गया। आदिल, मैंने बहुत मेहनत से बिरयानी बनाई है, प्लीज बोलते जाएं। नजरों से इसकी जानिब देखकर बोली, जिस तरह आदिल की आंखों में जज्बात और जोश के समंदर ठाठे मार रहा था। उसे अपनी जान खतरे में लग रही थी। पहले तुम्हारे इन लबों का जायका चखना है, उसके बाद फिर तुम्हारे हाथ से बनी बिरयानी खाऊंगा। उसकी कलाई पर अपनी गिरफ्त सख्त करते मजीद खुद में भींच गया। आदिल, दर्द हो रही है, छोड़े, वो मासूमियत से बोली। आदिल ने अपनी मुस्कुराहट रोकी। कहाँ दर्द हो रही है तुमको? अनजान बनकर पूछने लगा। उर्वा ने अपनी कलाई की जानिब इशारा किया जिसे उसने सख्ती से दबोचा था। हाय रे मेरी मोटो, इतनी नाजुक हो गई। वो अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए बोला। वो खिलकर हंस भी ना सका। जानता था अगर हंसता तो उसकी मोटो ने यही समझना है कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है और फिर उसका मुंह बन जाता। अब मुझ पर हंस रहे हैं? उसकी तवक्को के मुताबिक उर्वा का मुंह बन चुका था। नहीं भला मेरी इतनी मजाल मैं तुम पर हंसूं? अच्छा चलो बिरयानी निकालो, मिलकर खाना खाते हैं। उर्वा के माथे पर शिद्दत भरा बोसा देते हुए उससे दूर हुआ तो उर्वा ने अपने सीने में अटकी सांस बहाल की। आप जाएं, फ्रेश हो जाएं, उसके बाद मैं खाना निकालती हूँ। आदिल को नहाने का कहते वो किचन में जाने लगी जब आदिल की आवाज़ सुनकर उसके कदम रुके और वो मुड़कर फिर से उसे देखने लगी। वैसे भी थोड़ी देर बाद हम दोनों ने साथ फ्रेश होना है, फिर अभी नहाकर अपना टाइम क्यों ज़ाया करूँ? उसे आज तपाने का इरादा किए हुए था। बेशरम इंसान। वो शर्म से सुर्ख होती बुड़बुड़ाई, जो कि आदिल ने बखूबी सुन ली। वो मुस्कुराता अपने बालों में हाथ फेरने लगा जैसे बहुत ही अच्छा काम किया हो। अच्छा यार, मजाक कर रहा था, मुझे अभी फ्रेश नहीं होना, बर वक्त भूख है। भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा है। बिरयानी निकाल दो ताकि मैं टूट पड़ूं बिरयानी पर। वो आंख दबाकर कहता डाइनिंग टेबल पर बैठ गया, जबकि उर्वा उसकी शरारतों पर नफी में सर हिलाती पतीली में से बिरयानी प्लेट में निकालने लगी। उर्वा ने अपनी बिरयानी आदिल के सामने पेश की, जो दिखने में तो काफी अच्छी लग रही थी। खुशबू भी अच्छी आ रही थी। अब खाकर ही आदिल उसे बता सकता था कि कैसी बनी है। देखें आदिल। कैसे देखूं? तुम दिखाती ही तो नहीं हो। वो उसकी बात बीच में काटकर मायने खेदी से कहते उर्वा को आंख मार गया। आदिल प्लीज। वो सर झुकाए ब्लश करते बोली। चेहरा खून छलकाने की हद तक सुर्ख हो चुका था। दिल जोर से धड़कने लगा। उसे अपनी कैफियत की समझ नहीं आ रही थी। आदिल ने उसकी हालत पर बमुश्किल ही अपना कहका रोका था। आदिल ने उर्वा को ब्लश करते हुए देखा और उसकी आंखों में एक हाथ चमक आ गई। और जानता था कि वो उसके मजाक पर जिच हो रही है, लेकिन उसे अपनी शरारतों का मजा भी आ रहा था। उसने मुस्कुराकर बिरयानी की प्लेट उठाई और एक चम्मच भरा, फिर उर्वा की तरफ बढ़ा दिया। खुदा के लिए मुझ पर रहम करें और खाना खाएं शराफत के साथ, वरना मैं उठकर चली जाऊंगी कमरे में। नाक के नथने गुस्से से फुलाए वो गुस्से से बोली। उर्वा की जानिब देखते आदिल ने बिरयानी से भरा चम्मच ठूसा और उसकी आंखों में झुरमुट की तरह चमक आई जब उसने बिरयानी का जायका महसूस किया। कैसी बनी है? उर्वा ने तजस्सुस से पूछा, मगर उसके चेहरे पर एक चमक थी जैसे वो पहले ही जानती हो कि जवाब क्या होगा। मुनासिब है, बस मोटो, जितनी तुम उतावली हो रही थी मुझे बिरयानी खिलाने में, इतनी भी मजे की नहीं बनी कि मैं तुम्हारी तारीफ करूं। अगर बंदा मुंह से कुछ अच्छा नहीं बोल सकता तो उसे बंद ही रखे बेहतर है। ये तो बहुत ही जबरदस्त जवाब था, लेकिन मुझे तुम्हारी महारत पर शक नहीं। मोटो गुस्सा ना हो, बाकी अच्छी बनी है, टेस्टी है। आदिल ने शरारत से कहा और उर्वा के क्यूट एक्सप्रेशन देखकर अपनी हंसी रोक न पाई। दोनों के दरमियान हल्की फुल्की गुफ्तगू हुई और दोनों ने खुशगवार माहौल में एक दूसरे को तंग करके खाना खाया। मोटो, आदिल ने उसे मोहब्बत से पुकारा तो उर्वा ने नजरें उठाकर उसे देखा, जो कब से उसकी शरारतों पर तंग आ चुकी थी। हाँ जी कहें, एहसान करने वाले अंदाज में जवाब दिया। आदिल खान ने आईब्रू उचका कर उसकी जानिब देखा, जो उसके नरम रवैये पर बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो गई थी। जो मैक्सी लेके आया हूँ, जाओ उसे पहनकर अच्छी सी तैयार होकर बाहर आओ, तुम्हें कहीं पर लेकर जाना है। अब ये मत पूछना कि कहाँ और किधर जाएंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल भी जवाब नहीं दूंगा। जब जाएंगे तब देख लेना। वो पहले ही उसके सवालों का जवाब दे गया तो उर्वा खामोशी से मुंह बंद ही रखते उसे गुस्से से घूरती पैर पटकते कमरे में चली गई और आदिल बाहर ही लाउंज के सोफे पर लेटकर अपना मोबाइल चलाने लगा। इरादा उसका हवेली कॉल करने का था, लेकिन मगर वो अपना इरादा तुर्क करके इस वक्त मूवी देखने में मसरूफ हो गया था, जब तक उर्वा तैयार ना हो जाती।
मुंतहा कमरे में बैठी अपने रब के हजूर अपने खान के लिए अपने अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांग रही थी कि अल्लाह उसके खान को ठीक कर दे। मुंतहा सजदे में झुकी थी, या अल्लाह जी मेरे खान को ठीक कर देना। अल्लाह जी आप जानते हो ना मुझे अपने खान से कितनी मोहब्बत है। अल्लाह जी आंखों से आंसू बह बह कर जय नमाज पर गिर रहे थे। अल्लाह जी खान को मुझे वापस कर देना, मेरे खान को मेरे पास ले आए ना। अल्लाह जी मुंतहा सिसक सिसक कर अपने अल्लाह से दुआएं कर रही थी कि अल्लाह उसकी सुन ले, और अल्लाह तो सबकी सुनने वाला है। अल्लाह पाक तो कहते हैं कि बंदे तू मुझसे मांग मैं तुझे अता करूंगा। अल्लाह पर यकीन होना चाहिए। बाकी अल्लाह पाक अपने बंदे को अपनी रहमत से कभी भी नाउमीद नहीं करता। और मुंतहा तो अपने महरम को अपने अल्लाह से मांग रही थी, वो भी सजदे में गिर कर। फिर अल्लाह कैसे अपने बंदों के आंसू ज़ाया होने से इतनी देर सजदे में रहने की वजह से मुंतहा के पेट में दर्द होने लगा। दर्द की वजह से उठ कर बैठी और अपनी सूजी हुई आंखों से आंसू साफ करने लगी, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कल सुबह से इसकी हालत कुछ यूं ही थी। अब तो रात हो चुकी थी, दिन भर पूरा परेशानी में गुजर चुका था। हसाम ने शोएब खान को हसाम ने शोएब खान को कॉल कर दी। तकरीबन आधे घंटे बाद शोएब खान हॉस्पिटल में मौजूद थे। अपने भतीजे के खून आलूद बाजू को देखकर बेसाख्ता ही उनकी आंखें नम हुई थी। अयान ने शोएब खान के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें हौसला दिया, जैसे वो कहना चाह रहा था जुरैद बिल्कुल ठीक है। जुरैद बेटा ठीक हो? शोएब खान ने उसके पास खड़े होते कंधे पर हाथ रखकर प्यार भरे लहजे में पूछा तो जुरैद ने हामी में सर हिलाया। मामू टेंशन फ्री हो जाए, अपनी औलाद की पैदाइश के बाद की मिठाई खिलाने से पहले उसे कुछ नहीं होगा, खुशगवार लहजे में कहकर जैसे उदास हुए माहौल को बदलना चाहा। अपनी काली जुबान बंद रखो, मेरे भतीजे को अल्लाह लंबी जिंदगी दे। शोएब खान में जैसे शोएब खान में जैसे हसाम खान की बात को सीरियस अंदाज में ले लिया था। ससुर साहब उसने तो मजाकिया अंदाज में कहा है, आप तो सीरियस ही हो गए। अयान घर कॉल करके कमरे के अंदर दाखिल हुआ और शोएब खान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मेरे ख्याल से मैं तुम्हारा चाचा हूँ, तो ये बात ससुर साहब कहना बंद कर दो। चाचू मैं जानता हूँ आप मेरे चाचा हैं, लेकिन मेरे ससुर भी तो हैं, और मैं ससुर आपको इसलिए बुलाता हूँ कि मुझे याद रहे। अयान ने अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए संजीदा अंदाज में कहा। दुर्रेद ने रफी में सर हिलाते हुए इन सब की जानिब देखा, जो उदास भरे माहौल को भी खुशगवार माहौल में तब्दील कर देते थे। वैसे लाला यार, मेरी आपसे फोन पर बात नहीं हुई, आप तो बहुत तेज निकले हैं, मुझसे पहले छक्का मार लिया। अयान ने जुरैद के पास बैठकर चेहरे पर फर्दी परेशानी सजाते हुए कहा, जैसे वो अपना दुख सबको बता रहा था कि मैं अभी तक बाप नहीं बना। क्या मतलब? मैं पहले जुरैद खान ने सवालिया नजरों से अयान खान की जानिब देखकर पूछा। उसे अयान की बात का मतलब समझ न आया था कि वो कहना क्या चाह रहा है। शनावर ने सख्ती से गुस्से में अयान को आंखें दिखाई और आंखों ही आंखों में चुप रहने का इशारा किया, तो अयान ने मुंह पर उंगली रख दी और खामोश हो गए। कुछ नहीं लाला, वैसे ही मजाक कर रहा था। एक काम करो जो जुरैद रूटीन में करता है, जैसे वो अपने कमरे से बाहर निकलता था, तुम भी पूरा दिन अपने कमरे में अपनी बीवी के साथ बंद रहा करो। शनावर आसाम जाके जुबान होकर बोले तो जुरैद का चेहरा खफा से सुर्ख पड़ गया। अयान ने बमुश्किल अपनी हंसी कंट्रोल की और शोएब खान ने खा जाने वाली नजरों से इन दोनों की जानिब देखा, जैसे कहना चाह रहे थे शर्म कर लो कुछ। ससुर जी ये बात आप अपने भतीजे को समझाएं, जब उसे पूरा दिन अपनी बीवी के साथ कमरे में बंद रहते हुए शर्म नहीं आई, तो हमें बात करते हुए शर्म क्यों आए? इससे कबल जुरैद पास पड़ी कैंची उठाकर अयान के सर पर मारता वो उसके पास से उठकर हसाम और शनावर के पास जाकर खड़ा हो गया। नाहिती को बेशर्म मर्द है हमारे खानदान के। शोएब खान ने तासुर से सर हिलाते हुए चारों की जानिब देखा। ठीक हो तुम? हसाम ने उसके हाथ से कैंची पकड़कर इस्तफार किया, तो उसने हामी में सर हिला दिया। इस वक्त डॉक्टर कमरे में दाखिल हुई। उनकी तबीयत बेहतर है, लेकिन चूंकि कंधे की हड्डी के पास गोली लगी है, तो एक दिन इन्हें हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, डॉक्टर ने एक प्रोफेशनल अंदाज में कहा। और जब कमरे में दाखिल हुई थी, वो चारों उसकी जानिब पूछने के लिए बढ़े, तो डॉक्टर फौरन बोली, हरगिज नहीं, मुझे घर जाना है, जुरैद अटल लहजे में बोला। शोएब खान समझ गए थे कि वो घर क्यों जाना चाहता है। जुरैद नहीं हसाम, वो अभी बोलने ही लगा था, जो जुरैद ने हसाम की बात काटी। ठीक है, मैं फ्लाइट बुक करवाता हूँ और आपके पास कुछ देर तक मैं डिस्चार्ज पेपर लेकर आ रहा हूँ, इस पर साइन कर दीजिएगा। हसाम ने जुरैद से कहकर डॉक्टर से कहा और बाहर की जानिब चला गया। अपना मोबाइल पॉकेट से निकालकर जो आदमी इसके अंडर काम करते थे, उनमें से एक को कॉल मिलाई। कल आदमी का पता लगवाओ जिनकी लाश तुमने गोदाम के अंदर से उठाई है। कुछ घंटों में इनके बारे में सारी मालूमात मुझे चाहिए। हसाम का लहजा हद से ज्यादा सख्त था, आंखों में सफाकियत थी। इसका दिल चाह रहा था वो इंसान उसके सामने हो जिसने उसके दोस्त को गोली मारी है, और वो उसके बदतर तरीके से मारे। जल्दी से ठीक हो जाए लाला, मुंतहा और मोरे आपका घर पे इंतजार कर रही हैं, और बाकी सब भी।
अयान खान ने झुकते ही जुरैद खान के कान के करीब झुकते उसके माथे पर बोसा दिया। मैं ठीक हूँ, तुम लोगों को देखकर मैं कुछ कुछ ठीक हो गया हूँ, बाकी पूरा भी ठीक हो जाऊंगा जब मैं अपनी खानम को देखूंगा। मुंतहा का सोचते उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खुद ब खुद ही बिखर गई। अयान खान ने मायने खेदी से उसे देखा। लाला खैरियत, इतनी क्रिटिकल हालत में भी मेरी भाभी को सोचकर मुस्कुराया जा रहा है। मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ आपके लिए, जब तक आप थोड़ा सा आराम कर लें। हसाम टिकट बुक करवाने गया है। अयान खान जुरैद खान की निढालती हालत को देखते उसके लिए खाना लाने के लिए चला गया। शनावर और शोएब खान आप में किसी जरूरी बात के मुतालिक गुफ्तगू कर रहे थे और जुरैद खान अपनी खानम को सोचते आंखें बंद कर गया। दूसरी तरफ हवेली में सब लोग हॉल में बैठे हुए थे। वो मुसलसल किसी खबर के आने का इंतजार कर रहे थे। दिलदार खान चेहरे पर सुकून भरी और खुशी भरी मुस्कुराहट सजाए बाहर लाउंज में आए, जहां सब कुरान पाक की तिलावत करने में मशगूल थे। जब भी घर में कोई भी परेशानी आती थी सबसे पहले वो खुदा का जिक्र करते थे और उनकी हर परेशानी हल हो जाती थी। अभी भी सब अल्लाह पाक का जिक्र करने में मसरूफ थे। क्या बात है दिलदार खान, कुछ खबर मिली? जुरैद खान कहाँ है? दाजी दिलदार खान को मुस्कुराकर आते देख पूछ बैठे, जो पुरसकून सा दिख रहा था। दाजी की आवाज पर बाकी सब अफराद ने भी नजर उठाकर दिलदार खान को देखा। जुरैद खान मिल गया दाजी, वो ठीक है, बहुत ही तहम्मुल से सबको देखते दिलदार खान ने बताया। जुरैद खान ठीक तो है ना? दाजी ने परेशानी से पूछा। दाजी सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अयान की कॉल आई थी, उसने कहा कि सब ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो लोग सुबह तक पहुंच जाएंगे। कह रहे थे फिर बता देंगे क्या हुआ था। जुरैद कहाँ था? मुझे कुछ भी नहीं बताया। दिलदार खान ने सारी बात बताई। या अल्लाह तेरा शुक्र है। सबने शुक्र अदा किया सबने शुक्र अदा किया था। रिजवाना खानम का चेहरे पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट रक्सा हुई। मुरझाया चेहरा खिल उठा था बेटे की खैरियत मालूम होने पर। मैं शुक्राने के नफल अदा करके आती हूँ, ये कहते रिजवाना भी उठकर कमरे में चली गई। हानिया भी हॉल में ही बैठी थी। वो खुशी तो मुंतहा की कमरे की जाने भागी, ये बताने के लिए कि उसकी दुआएं रंग ले आई हैं। हानिया ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। सामने देखा जहां मुंतहा अभी भी बैठी जाए नमाज पर हाथों में तस्बीह पकड़े लगातार पढ़ते जा रही थी। हानिया को मुंतहा की हालत खराब ही लगी थी। जब दिल के बाग का माली ही बीमार हो तो बाग कैसे ठीक रह सकता है? और दिल की उदासी तो चेहरे पर वाज़ेह हो जाती है। मुंतहा, हानिया ने पुकारा तो मुंतहा ने अपनी नजरें उठाकर हानिया को देखा जिसका चेहरा मुरझाया हुआ था। क्या हुआ? कि हानिया सब तो ठीक क्या हुआ? हानिया सब ठीक तो है ना? ऐसे मुंह क्यों बनाया हुआ है? खान ठीक तो है ना? वो ठीक है ना? बताओ मुझे। मुंतहा हज़ियानी होती हुई बोली तो हानिया को अपना मजाक भारी पड़ता हुआ महसूस हुआ। मुंतहा, वो अयान की कॉल आई थी, उसने बताया कि जुरैद लाला बिल्कुल ठीक है। वो ठीक है? मुंतहा हानिया खुशी से कहकर चहकते हुए मुंतहा को गले लगाया था। पहले तो मुंतहा को समझ नहीं आया था, लेकिन जब उसे समझ आया तो उसने बेयकीनी से हानिया को देखकर और मुंतहा की नजरों का मतलब समझते हानिया ने हाँ में सर हिलाया तो मुंतहा ने हानिया को गले लगाया। उफ, मेरे खान ठीक है, वो ठीक है, वाकई अल्लाह तेरा शुक्र है। मुंतहा ने हानिया को जोर से गले लगाया तो उसे यकीन नहीं आ रहा था अल्लाह ने इसकी सुन ली, वो भी इतनी जल्दी। और उसका खान का पता लग गया, वो ठीक था। आमना हसाम अभी तक नहीं आया। रात के खाने पर हदीका खानम ने हसाम को न पाकर आमना से पूछा, जी मोम वो पता नहीं, मैंने कॉल नहीं की। उसे समझ नहीं आया क्या कहे। सो जो मुंह में आया कह दिया उसने। दानियाल को सुबह ही हसाम खान का मैसेज मौसूल हो चुका था। दारवन खान को भी दानियाल ने सरसरी सा बता दिया था जुरैद खान के मतलब। इसलिए ज़ाहरन खान ने दानियाल को मना किया कि अभी हदीका खानम को कुछ न बताए। सुबह वो सब हवेली चले जाएंगे जब हताम खान वाले जर्मनी से आ जाएंगे। खानम उसे किसी जरूरी केस के बाद इस्लामाबाद जाना पड़ा, सुबह लौटेगा। ज़ाहरन खान ने साफ झूठ कहकर बात खत्म कर दी। ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो वो इस्लामाबाद से पहुंच गया और माँ को बताना जरूरी नहीं समझा? हदीका खानम के चेहरे पर गुस्सा और नूद आया। अरे यार खानम, बेचारे पर गुस्सा क्यों कर रही हो? सुबह तक आ जाएगा, अब बात की खाल मत उधेड़ो। ज़ारवन खान शरारत से बोले। क्या हदीका खानम ने घूर कर उन्हें देखा। आने दो उसे, फिर देखूंगी। वो दांत पीस कर बोली, मुझे देखती नहीं मुझे देखती नहीं हो, बेटे को देखोगी। हसाम खान को देखना तुम्हारी बहू का काम है। खानम, तुम मुझे देखा करो। अपनी नेचर के मुताबिक संजीदगी भरा माहौल ज़ारवन खान हंसी मजाक में तब्दील करने लगे। ज़ारवन खान की बात पर हदीका खानम के खाना खाते हाथ रुके और गाल दहक कर सुर्खनार हुए।
ओए होए मॉम ब्लश कर रही हैं। नूर ने हदीका खानम की टांग खींची। दारवन खान को शरारत से देखा। चुप करो तुम अपने डैड की चमची। तुर्क गालों के साथ हदीका खानम ने ब्लश करते हुए नूर को डांटा, लेकिन अपने चेहरे पर मुस्कुराहट को ना रोक पाई। और बस मौका मिल गया बाप और बेटी को बेचारी हदीका खानम को तंग करने का। ओए होए डैड आपकी बंदी ब्लश कर रही है। मॉम आपके चीक्स बहुत रेड हो रहे हैं ना आमना, देखो देखो। नूर मजीद उन्हें जिच करती बोली। ये वो लम्हे थे जब घर का माहौल मुकम्मल तौर पर खुशगवार हो गया कि सब कहका लगा उठे और नूर को मारने के लिए हदीका खानम ने अपनी चप्पल उतारने लगी। हदीका खानम ने नूर की शरारतों को बर्दाश्त करते हुए चंद लम्हे के लिए दिल में सोचा, वाकई वो बहुत खुश नसीब थे जिनके घर का माहौल ऐसा था। बेटे बेटी बहू और शोहर के साथ ये खुशी के लम्हे उनके दरमियान जीते जागते रिश्ता और मोहब्बत की असल हकीकत को जाहिर कर रहे थे। नूर चुपके से अपनी जगह से उठी और तेजी से आगे बढ़ते हुए जारवन खान के पीछे पनाह लेने की कोशिश करने लगी, लेकिन जारवन खान ने फौरन अपनी टांग के साथ एक कमाल की हरकत की और नूर को अपने पीछे छुपने का मौका न दिया। डैड आप भी, नूर चीखी। बेटा आपने मेरी बेगम को तंग किया है, अब आपको पनाह नहीं मिल सकती। जारवन खान नूर को तंग कर रहा था। देख लूंगी डैड आपको भी अपनी खानम का साथ दिया जा रहा है ना। नूर इंतहाई तेज रफ्तार से दानियाल खान की तरफ दौड़ गई, जो कि इस वक्त अपनी कुर्सी पर विराजमान था। नूर ने दानियाल खान की पुश्त पर हाथ मारा और वो दानियाल खान के पीछे छुप कर बैठ गई, जबकि हदीका खानम चप्पल उतारकर उसके पीछे पीछे ही थी। देखा मॉम, मैंने कहा था ना ये टेड्डी बड़ी तेज है। पहले मॉम मॉम करके थकती नहीं थी, अब डैड की चमची बन गई है। गिरगिट की तरह अपना रंग बदलती है। आग लगाते दानियाल अपनी पुश्त पर लंबे लंबे नाखूनों की जलन को महसूस करते दांत पीस कर कहा, हाँ बेटा मैं सब देख रही हूँ। कहते साथ हदीका खानम ने अपनी चप्पल चमचमाते हुए नूर की तरफ फेंकी। नूर ने फौरन बचने की कोशिश की, लेकिन फिर भी बेचारे की पुश्त पर जा लगा था। वो लम्हा जो घर की मोहब्बत, उनसियत और मज़ाहिया फजा से भरा हुआ था, आज सबके दिलों पे हमेशा के लिए महफूज रहने वाला था। डैड, हदीका खानम की हल्की सी स्लीपर खाकर नूर मुंह बना गई और दानियाल को देखा, जिसने जल्दी से चेयर से उठकर हदीका खानम के सामने उसे पेश किया था। आइंदा तंग करोगी मुझे, डबल मार पड़ेगी। शहादत की उंगली उठाते अपनी खफत मिटाने की खातिर वो गुस्से से बोली। तभी दानियाल खान के सीने से लगी आंसू बहाती नूर को उपकाई आई और वो जल्दी से दारुन खान से अलग होती वॉशरूम भागी। उसके पीछे पीछे दिखा खानम आमना भी परेशानी से चली गई। इसे क्या हुआ डैड? कंधे उचकाकर दानियाल ने आंखें घुमाकर पूछा। लगता है मैं नाना दादा बनने वाला हूँ। 30 साल पहले वाला मंजर में जाते हदीका खानम को याद करते दारवन खान ने कहा कि दानियाल खान के कानों से धुआं निकलने लगा। बाप बनने का सोचते दिल में अजीब सी गुदगुदी हुई। चेहरा सुर्ख हुआ, मगर बाप के सामने वो चेहरे पर संजीदगी से जाग गया, वरना फिर तंग करके दारवन खान ने इसका कचूमड़ बना देना था। क्या हुआ बेटा, आर यू ओके? नूर वॉशरूम से निढालती हालत में निकली तो हदीका खानम उसकी पोस्ट से सहलाकर पूछने लगी, नो मॉम आई एम नाउ ओके। मुझे बहुत उल्टियां आ रही हैं। कल रात से दिल भी अजीब अजीब सा हो रहा है। वो निढालती हालत में हदीका खानम के कंधे पर सर रखे बोली, अगर तुम्हारी कल रात से तबीयत खराब थी तो पहले क्यों नहीं बताया? बेटा आ जाओ, हॉस्पिटल चलते हैं। शाबाश, जल्दी करो, मैं बाहर गाड़ी में इंतजार कर रही हूँ, चादर लेकर आ जाओ। हदीका खानम खुशी से बाहर चली गई। नूर की कंडीशन देखकर उन्हें खुशखबरी लग रही थी। लगता है मैं चाची बनने वाली हूँ, आमना ने इसके असर के चेहरे को देखकर कहा। नूर ने धीरे से ब्लश किया कि उसे फिर से उकसाई आई और वॉशरूम में भागी। थोड़ी ही देर में नूर हदीका खानम और दानियाल खान के हमरा हॉस्पिटल में आई थी। डॉक्टर उसका अंदर चेकअप कर रही थी, जबकि हदीका खानम और दानियाल बाहर का कॉरिडोर में टहल रहे थे। तकरीबन 20 मिनट बाद एक नर्स आई और दानियाल खान और हदीका खानम को अंदर बुलाया। आप इनके हस्बैंड हैं? डॉक्टर ने दानियाल खान की जानब देखकर पूछा। जी, दानियाल खान ने संजीदगी से एक लफ्जी जवाब दिया। नूर को देखा जो काफी निढाल लग रही थी। जी, हमने आपकी वाइफ के कुछ टेस्ट किए हैं, इंशाल्लाह इनकी रिपोर्ट आपको कल सुबह तक मिल जाएगी। हदीका खानम ने डॉक्टर की बात पर उलझ कर उन्हें देखा। वो तो नानी बनने की उम्मीद लेकर हॉस्पिटल आई थी। जी बेहतर डॉक्टर। दानियाल खान डॉक्टर का शुक्रिया कहते ही अपनी जगह से उठते उठते ही बाहर चला गया, जबकि नूर हदीका खाना भी इसके पीछे पीछे गाड़ी में आ गई। आप सबको कल रिपोर्ट का इंतजार है। अगली सुबह एयरपोर्ट पर उतरते ही वो घर की तरफ रवाना हुए। तकरीबन सुबह के 6 बजे वो सब घर पहुंचे। सामने रिजवाना खानम खड़ी थी। अपने बेटे को देखते ही वो तेज कदम बढ़ाते उसके गले लगी। उनके पीछे फरजाना खानम, फौजिया खानम, दिलदार खान और घर के तमाम अफराद खड़े थे जो बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। रिजवाना खानम ने अपने बेटे की पेशानी पर बोसा दिया। मैंने अपने दिल के टुकड़े को हद से ज्यादा याद किया। रिजवाना खानम ने एक मर्तबा फिर से जुरैद की पेशानी पर बोसा दिया।
رضوانہ خانم ہمیں بھی اپنے بیٹے سے ملنے دو۔ دلدار خان نے اپنی بیوی کو پیچھے کر کے اپنے بیٹے کو گلے لگایا اور جب نظر اس کے کندھے پر پڑی تو بے ساختہ آنکھیں ہلکی سی نم ہوئی تو زریز نے اپنے ڈیڈ کے گرد سخت احسار بنا لیا۔ دلدار خان پیچھے ہٹے تو فرزانہ خانم اور فوزیہ خانم زریز سے ملی، پھر ہانیہ آگے ہوئی تو زریز نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ سب باہر سے ہی مل لوگے، اسے اندر نہیں لے کر جاؤ گے کیا؟ دلدار خان سب کو پیچھے کر کے زریز کو لے کر گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اب ماحول کچھ یوں تھا کہ ایک صوفے پر زریز کے ساتھ ایان اور حسام بیٹھا ہوا تھا اور اس کے دائیں جانب شناور، شعیب خان اور ساتھ میں فرزانہ خانم بیٹھی ہوئی تھی۔ بائیں جانب ہانیہ، رضوانہ خانم اور فوزیہ خانم بیٹھی ہوئی تھی۔ میرا بیٹا ٹھیک ہے؟ رضوانہ خانم بار بار زریز خان کو دیکھے جا رہی تھی۔ بورے میں بالکل ٹھیک ہوں۔ زریز اٹھنے لگا جب دائیں جانب سے ایان نے بازو پکڑا اور بائیں جانب سے حسام نے۔ چپ کر کے یہیں پر بیٹھا رہا اور مورے آپ کا بیٹا بالکل ٹھیک ہے۔ پہلے حسام بولا، پھر ایان۔ حسام اور ایان اچھے سے جانتے تھے وہ رضوانہ خانم کے پاس کچھ پل بیٹھے گا اور پھر اپنی بیگم صاحبہ کے پاس چلا جائے گا۔ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے تمہیں کس چیز کی آگ لگی ہے، حسام نے ایان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو ایان نے بھی حامی میں سر ہلایا۔ اسی پل شناور اپنی جگہ سے اٹھا اور تینوں کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ صبر کر، چلے جانا اپنی خانم کے پاس۔ کچھ دیر تک شناور نے اس کے پیٹ میں گدگدی کرتے ہوئے کہا اور ہانیہ کو اشارہ کیا کہ وہ اپنے کمرے میں چلی جائے۔ بھائی میں تو آپ سے ناراض ہوں، آپ نے مجھ سے پہلے چھکا مار لیا۔ ایان ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کی خاطر بولا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ گھر کا ماحول اداس ہو جائے۔ زریز نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ ہاسپٹل میں بھی اس نے یہی بات کی تھی کہ وہ اس سے پہلے چھکا مار گیا ہے، لیکن یہ بات اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ یار صحیح کہہ رہا ہے، یہ میری شادی بھی تقریباً اس سے تھوڑی دیر بعد ہی ہوئی تھی، لیکن کارنامہ اس نے پہلے سر انجام دیا ہے۔ اب کی باری حسام بولا تھا۔ وہاں موجود سب افراد کو سمجھ آ رہی تھی کہ دونوں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ صرف زریز ہی تھا جس کے دماغ کے اوپر سے یہ ساری باتیں گزر رہی تھی۔ بھائی میں کیا منہ دکھاؤں گا فیوچر میں اپنے۔ اس سے قبل وہ اپنی بات مکمل کرتا شناور اور حسام نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ دفع ہو تم سب، میں جا رہا ہوں اپنے کمرے میں۔ زریز غصے سے ان سب کی جانب دیکھتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ہاں ہاں جاؤ رن مریدی کرنے، پیچھے سے شناور، ایان اور حسام یک زبان بولے۔ جو زریز نے بخوبی سنا تھا، پھر نفی میں سر ہلایا کہ ان کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ خانم زریز خان نے اسے دھیرے سے پکارا جو سلام پھیر کر اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا چکی تھی۔ اپنی سماعتوں میں پسندیدہ سور کو گونجتے دیکھ کئی پل وہ ساکت رہی۔ جب سکتا ٹوٹا اس نے گردن موڑ کر دروازے کی جانب دیکھا۔ زریز خان کو دیکھتے آنکھوں میں نمی بڑھی، منتہا بھاگتے ہوئے اس کے چوڑے سینے میں آ سمائی اور زاروں قطار آنسو بہانے لگی۔ دل بے تحاشا زوروں سے دھڑکنے لگا۔ آپ آگے، میں نے منع کیا تھا نا، آپ نے نہیں جانا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کچھ برا ضرور ہوگا، دیکھ لیا نا، ویسے ہی ہوا۔ بہت مزہ آیا ہوگا نا آپ کو مجھے تکلیف دے کر؟ میں نے کتنا مس کیا آپ کو، جانتے ہیں میرا دل بند ہو رہا تھا جب میں نے آپ کی چیخ سنی تھی۔ پچھلی 2 راتوں سے میں سو نہ پائی ہوں خان، آئی لو یو۔ وہ سختی سے اسے خود میں بھینچے زریز خان کے چوڑے سینے میں سمائے جا رہی تھی۔ نماز پڑھنے کے لیے حجاب کے سٹائل میں باندھا دوپٹہ کھل کر اس کی شانوں پر ڈھلک گیا۔ سرخ رونے کے باعث متورم آنکھیں رت جگنے کی چغلی کر رہی تھی۔ گلابی سرخ سے گال اور ناک، کانچ سی سے آنکھوں میں پانی، وہ سیدھا زریز خان کے دل میں اتر رہی تھی۔ میری جان، میری شہزادی، لو یو ٹو۔ زریز خان نے اس کی پشت کو نرم ہاتھوں سے سہلا کر کہا۔ خان آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ زریز خان کے سینے میں چہرہ چھپا کر بلند آواز میں رونا شروع ہو گئی۔ اس نے اپنی خانم کی پیٹھ سہلائی اور اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر اسے چپ کروانا چاہا کہ مبادا کہیں اس کی طبیعت دوبارہ سے خراب نہ ہو جائے۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا، یہ دل دھڑکنا بند کر گیا تھا خان۔ زریز خان نے اس کی معصومیت پر اس کے چہرے پر بے تحاشا بوسے دیے۔ آپ کہاں تھے؟ کیا ہوا تھا؟ آپ چیخے کیوں تھے خان؟ منتہا اسے جھنجھوڑ کر پوچھنے لگی۔ ریلیکس رہو، پہلے بتاتا ہوں۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے پھر اپنے ساتھ گزرا سارا واقعہ سنا گیا۔ منتہا درد سے آنکھیں میچے اپنی ہچکیاں دبائے اسے سن رہی تھی۔ خان میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ اچانک سے ماں بننے کی خوشی یاد آنے پر منتہا سرخ آنکھیں اٹھا کر بولی۔ زریز خان نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا جو کنفیوز سے اسے انگلیاں آپس میں الجھائے مروڑ رہی تھی۔ خانم کہو، میں تمہیں سننے کا منتظر ہوں۔ پھر بھرپور لاڈو والے انداز میں گویا ہوا۔ خان اب بابا بننے والے ہیں، منتہا نے روتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ کر ناز سے کہا۔ کیا سچ میں؟ وہ بے یقینی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے بولا۔ منتہا نے دھیرے سے اپنا سر حامی میں ہلایا۔ ایک بار پھر کہو، کیا واقعی میں بابا بننے والا ہوں؟ زریز کو جیسے یقین نہ آیا اس کی بات پر، تو وہ پھر سے پوچھنے لگا۔ جی آپ سچ میں بابا بننے والے ہیں؟
अपने लबों से जुरैद खान के सीने को महका कर बोली। जुरैद खान के लिए यकीन करना मुश्किल था कि वो बाबा बनने वाला है। खाना मुझे यकीन नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ खुली आंखों से, या तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। अपनी कैफियत से अनजान जुरैद खान बोला तो मुंतहा ने मुस्कुराकर उसके सीने से सर उठाकर उसकी आंखों में देखा जहाँ खुशी का एक जहां आबाद था। मैं आपको यकीन दिलाने के लिए क्या करूं खान, वो बेचारगी सा मुंह बनाकर बोली। मुझे चुटकी काटो। जुरैद ने उसके सामने अपना बाजू पेश किया। हीरा ने पेश किया और मुंतहा ने मुस्कुराहट रोकी उसके बाजू पर चुटकी काटी। जालिम खानम, मसनूई करा कर बोला। अब आ गया यकीन आपको, मैं सच कह रही हूँ। मुंतहा रोते हुए खुशी से हंस दी, पर हाथ फेर टमी नहीं। अभी भी नहीं आया जब तक मैं तुम्हारी टमी पर हाथ फेर कर फील न करूं। बेबाकी का मुजाहरा करते उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुंतहा को सुर्ख करने में। खान आपको शर्म नहीं आती ऐसे बातें करते हुए? मुंतहा कंफ्यूज होकर बोली। खानू मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, मैं सिर्फ बातें नहीं करता, मैं उस पर अमल करके भी दिखाता हूँ। मुझे फील करने दो। अपने हाथ बेबाकी से आगे बढ़ाते मुंतहा की पेट पर रखा कि मुंतहा ने झिझक कर अपना हाथ फौरन उसके हाथ पर रख कर पूरे वजूद में रख दिया। पूरे वजूद में करंट की एक लहर दौड़ी। जुरैद खान उसके फीलिंग से वाकिफ था, वो बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट जब्त किए हुए था। थोड़ी देर फील करने दो ना खानम। चेहरे पर मासूमियत सजाए वो बलाई लब निकाल कर बच्चों की तरह बोला कि बेसाख्ता उसके क्यूट अंदाज पर मुंतहा की हंसी छूट गई। बाकी सारे दुख एक तरफ, लेकिन दोनों को बेइंतहा खुशी थी कि वो मामा पापा बनने वाले हैं। अब वो ठरकी होते जा रहे हैं। खान अभी 2 मंथ हुए हैं, फील नहीं होगा। अपने पेट पर रेंगते जुरैद खान के हाथों को महसूस करते वो अपना निचला लब काटती नजरें झुकाए मिनमिनाई। 7 मंथ बाकी हैं, इतना लंबा इंतजार, उफ मैंने तुम्हें खा जाना है। खानम लबों पर जबान फेरते वो कुछ ऐसे अंदाज में बोला कि मुंतहा का सुर्ख चेहरा खून छलकने की हद तक सुर्ख हो गया कि अचानक मुंतहा का जी मतलाने लगा। भागते हुए वॉशरूम में जाकर उल्टियां करना शुरू हो गई। जुरैद खान उसके पीछे गया, उसकी पीठ सहलाई। वो जानता था अक्सर प्रेगनेंसी में इस तरह की कंडीशन हो ही जाती है। मुंतहा चेहरे पर पानी मारते जुरैद खान के गले लगकर रोना शुरू हो गई। उसे बात बात पर रोना आ रहा था। रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं हुआ। उसकी पीठ को सहला कर कह रहा था, जबकि मुंतहा ने गुस्से से उसके हाथ खुद पर से झटके और बेशुमार मुक्के जुरैद खान के सीने पर मारे। ये सब आपकी वजह से हुआ है। वो मुस्कुराते हुए उसके नाजुक हाथों से मार खा रहा था। वो बेइंतहा खुश था। बिल्कुल सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है, मेरे बगैर बेबी आना नामुमकिन था। वो इतनी मुस्कुराहट दबाए बोला, सारी तकलीफ उसकी झाग की तरह उड़ चुकी थी। हमारी जिंदगी में एक छोटा सा मेहमान आने वाला है खानम, तुम ये बच्चों वाली हरकतें छोड़ दो। अगर तुम इस तरह की हरकतें करोगी तो फिर हमारी छोटी सी बेबी को कौन संभालेगा? उसके नाजुक हाथ अपने एक हाथ में कैद करते शिद्दत से आंखों पर बोसा दिया। वो झुक गई। मुझे 3 बेटियां चाहिए खानम, क्या मंजर होगा जब मैं अपनी 3 बेटियों को एक साथ अपनी गोद में उठाऊंगा। जुरैद खान उसे बाहों में भरते बाहर लाते सोफे पर बिठाया, जबकि मुंतहा को अपनी गोद में बिठा लिया। सोफे पर बैठा जबकि मुंतहा को अपनी गोद में बिठा लिया और अपने हाथों को उसके पेट पर हरकत देने लगा। खान मैं इंसान हूँ, खुद की तरफ इशारा करके जैसे उससे यकीन दहानी करवा रही थी खुद को कि वो इंसान ही है। एक साथ 3 बच्चे? ओह मेरी जान, मैं जानता हूँ तुम इंसान हो और इंसान के 3 बच्चे पैदा हो सकते हैं। जुरैद खान उसकी गर्दन पर झुकते गंभीर लहजे में बोला। आपने कहाँ देख लिए किसी को 3 बच्चे पैदा करते हुए, जो अब आप मुझसे ये डिमांड कर रहे हैं? मुंतहा ने गर्दन मोड़ने की कोशिश की, लेकिन जुरैद खान उससे की कोशिश को नाकाम करते उसकी गर्दन पर झुकता लव बाइट बनाने लगा। मुंतहा बन पानी मछली की तरह उसके हिसार में मचलने लगी, लेकिन जुरैद खान ने हरगिज उसे आजादी ना दी। वो पूरे 4 दिन की तड़प उसमें अंडेल रहा था। हाँ बस देखते हैं, तुम तीन तीन पर अब इतना घबरा रही हो, मैंने तो लोगों के 4 4 बच्चे भी एक साथ होते देखे हैं। लब दबाए से जिच करने वाला अंदाज में कह रहा था कि मुंतहा सुर्ख हुई। हाँ आप बहुत बुरे हैं, ऐसी बातें ना करें, आपको शर्म नहीं आती? एक बेबी हो जाए वो भी बहुत बड़ी बात है, आप मुझसे मुंह फाड़कर 3 बेबीज की डिमांड कर रहे हैं। मुंतहा ने जैसे ही गर्दन मोड़कर कहा, उसके लब जुरैद खान के लबों से मिस हुए। उसे मजीद कुछ कहने का मौका दिए बगैर जुरैद खान उसके फड़फड़ाते हुए लबों को अपनी गिरफ्त में ले गया। तमाम तर शिद्दतें उस पर लौटाते उसके लबों पर खा जाने वाले अंदाज में झुका हुआ था।
جبکہ منتہا آزاد ہونے کے لیے اپنے ہاتھ اس کے سینے پر برسانے لگی، لیکن مقابل کو فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ تو بس اپنی طلب پوری کر رہا تھا جو منتہا کے لبوں سے ہی اس کی مٹ سکتی تھی۔ تقریباً 5 منٹ بعد اس کے لبوں کا رس نچوڑ کر وہ دور ہوا۔ منتہا نے خفگی سے اسے گھور کر اپنا بگڑا ہوا تنفس بحال کیا۔ گردن مڑنے کی وجہ سے اسے لگ رہا تھا جیسے اکڑ چکی۔ جست میں اسے سیدھا کرتے اس نے کہا، زریز خان نے ایک ہی دونوں بازو اپنی پیٹھ پر باندھ دیے اور اس کی گردن میں چہرہ چھپا گیا۔ منتہا کچھ دیر پرسکون ہونے کے لیے مزاحمت ترک کر کے اس کے بالوں پر اپنا چہرہ رکھ گئی۔ بگڑی ہوئی سانسیں بحال ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ دھڑکتا ہوا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ خان، یہ پٹی کیوں لگی ہوئی ہے؟ منتہا نے اس کے کندھے پر پٹی کو دیکھتے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی چوٹ لگ گئی تھی۔ زریز خان نے جھوٹ بول دیا۔ سچ بولتا ہوں، منتہا نے رو رو کر کمرے کو سمندر بنا دینا تھا۔ جھوٹ مت بولیں، سچ بتائیں کیا ہوا؟ وہ اپنی انگلیاں دھیرے دھیرے سے اس کے کندھے پر پھیرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ارے خانم، کچھ نہیں ہوا، یہ سب چھوڑو، فی الحال ہم دونوں اپنی اور آنے والے بیبی کی باتیں کرتے ہیں، وہ شوق لہجے میں کہتے منتہا کو سر تا پیر سرخ کر گیا۔ یوں بلش کر کے تم مجھے اپنا اسیر بنا رہی ہو خانے خانم، وہ گمبھیر لہجے میں سرگوشی سے بولا، جبکہ اب زریز خان بیڈ پر لیٹا ہوا تھا اور منتہا اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ بس رہنے دیں خان، بیبی ہونے کے بعد آپ کی محبت کم ہو جائے گی، وہ اس کی اٹینشن پانے کی غرض سے منہ پھلا کر بولی۔ خانم، میں گارنٹی دے سکتا ہوں محبت بڑھ جائے گی، لیکن کم کبھی نہیں ہوگی۔ اللہ کے سوائے دنیا کی اور کوئی طاقت ہمارے درمیان محبت کو کم نہیں کر پائے گی۔ تو میری پہلی اور آخری چاہت ہو، زندگی کی خواہش بھی نہیں رہی۔ خان پلیز اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ منتہا اسے کبھی خود سے دور نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنے خدا کے بعد سب سے زیادہ پیار زریز خان سے کرتی تھی۔ پھر رومانٹک باتیں کریں؟ زریز خان اس کے انداز پر مسکراتے ہوئے بولا۔ نو، گندی باتیں نہیں، البتہ پیار والی کہہ سکتے ہیں۔ ابھی مجھے آپ کے ساتھ بہت ساری خوشیاں دیکھنی ہیں، جیسے کہ زریز خان اس کے گرد باہیں پھیلائے تو منتہا اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ اتنے دنوں بعد وہ اپنی خانم کو سن رہا تھا۔ اسے نئے سرے سے محبت ہو رہی تھی اپنی خانم سے، جیسے کہ جب ہمارے نئے بیبی ہوگا پھر ہم اسے گھمانے لے کر جائیں گے، وہ ہمیں ماما پاپا کہے گا۔ منتہا امیجن کی دنیا میں جاتی سے کہہ رہی تھی۔ زریز خان کا دل کیا سختی سے اسے پکڑ کر ایک بار پھر اپنے سینے میں بھینچ لے۔ پھر آپ اور میں بیبی کے ساتھ کھیلیں گے، منتہا نے خوشی سے کہا۔ جب میں آپ سے ناراض ہوں گی، انہیں بھی آپ سے بات کرنے سے منع کروں گی۔ وہ ایکسائٹڈ سی اپنے فیوچر پلان بتانے لگی۔ اچھا جی، اور ایسے کیوں؟ زریز خان نے آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی کی، اپنی جلد بازی میں کہی بات پر غور کرتے ہوئے لب دانتوں تلے دبا گئی۔ اس حساب سے پھر مجھے 2 بیبی چاہیے، تاکہ ایک میرا اور ایک تمہارا ہو۔ جبکہ منتہا اس بار نظر اٹھا کر بھی اسے نہ دیکھ پائی۔ یہ چیٹنگ ہے خانم، ابھی کس طرح اپنے آنے والے بیبی کی محبت سے یاد کر رہی تھی اور میرے بچے کی بات آئی، اب نظریں بھی نہیں ملا رہی۔ زریز خان یوں ہی اسے شرارت سے تنگ کر رہا تھا۔ خان، وہ ہم دونوں کا بیبی ہوگا، وہ خفگی سے بولی۔ خانم، آپ کے ارادے سن کر ایسے لگ رہا ہے کہ آپ اسے میرا دشمن بنائیں گی، اس لیے مجھے 2 جڑواں بیبی چاہیے، بیٹا آپ کا، بیٹی میری۔ اس کی جھکی نگاہوں میں دیکھ کر بولا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ پھر کیا مطلب تھا؟ زریز خان اسے زج کرنے لگا۔ خان، چپ کریں ورنہ میں ہمارے بیبی کو اچھا خاصا ڈانٹوں گی، وہ اسے دھمکی دے کر بولی۔ خبردار، جو تم نے میرے بچوں میں محبت کی کمی کی۔ ویسے تو تم بہت پیاری ہو، مجھے نہیں لگتا کبھی تم ظالم ٹائپ ماں ثابت ہوگی، لیکن پھر بھی میں تمہیں وارن کر رہا ہوں، مجھے اپنے بچوں کے لیے ایک پیاری سی ماں چاہیے۔ زریز خان اس کی دھمکی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا۔ منتہا کو بالکل بھی امید نہ تھی کہ زریز آنے والے بچے کے لیے اس قدر پوزیسو ہوگا۔ کہاں کھو گئی، لگتا ہے سوچ کر بتانا چاہتی ہے اور دوسرے بیبی کے بارے میں۔ اس کا شرمایا ہوا روپ دیکھ کر زریز خان نے پھر گمبھیر لہجے میں سرگوشی کی۔ اچھا یہ بتاؤ، بیبی تم پر جائے گا یا مجھ پر؟ چھوٹے بچے کو ذہن کے پردوں پر لاتے ہوئے سوچ کر مسکرا اٹھا۔ مجھے کیسے پتا ہوگا؟ وہ شرما کے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ ہاں، میں نے سنا ہے ماں جلدی اندازہ لگا لیتی ہے کہ ہونے والا بچہ کس پر جائے گا۔ اپنی طرف سے بات بنا کر زریز خان نے ایک شگوفہ چھوڑتے مسکراتے ہوئے اس کی ٹھوڑی کو اونچا کیا تھا۔ اب بہت بے شرم ہے، وہ اس کا ہاتھ ہٹاتی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ جب زریز خان مسکرایا، ہر بار کی طرح وہ اب بھی شرما رہی تھی۔ شاید یہی چیز زریز خان کو اس کا مزید دیوانہ کرتی تھی۔ ویسے میں نے سنا ہے کہ بچوں کے بعد پیار بڑھ جاتا ہے، میں تو دن رات اپنا پیار بڑھانا چاہتا ہوں، اسے اپنے سینے سے لگائے آہستہ آہستہ بول رہا تھا۔ آپ بھی نہ، پتہ نہیں کون آپ کو ایسی باتیں بتاتا ہے، بس کچھ بھی کہہ دیتے ہیں آپ۔ کیوں؟ میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟
आंखें पटपटाते मासूमियत एक बार फिर चेहरे पर तारी हुई। यही कि बच्चे होने के बाद मजीद प्यार बढ़ता है। हालांकि बच्चे होने के बाद तो फिर प्यार करने का टाइम भी नहीं। वो कहते कहते यकदम चुप हो गई। अपनी बात का मतलब समझते शर्मा कर अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा गई। इतना तो वो मुकाबिल को जान चुकी थी। अब जरूर वो उसे तंग करने की गर्ज से उसकी बात का मतलब कुछ गलत ही निकाल रहा था। नो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। बच्चों के लिए मैं दूसरा कमरा बनवाऊंगा ताकि हमारे रोमांस में वो हरगिज खलल न डाले। मुकाबिल भी जुरैज खान था। वो कहाँ बाज आने वाला था। बेबाक बातें करने से। हाँ ना, बहुत बेशर्म है, ऐसी बातें नहीं करती। आपको पता है मैंने इन 4 दिनों में आपको कितना ज्यादा मिस किया है। वो अपने दोनों हाथ फैलाए हुए कहने लगी। आंखें फिर से थोड़ी सी नम हुई थी। अरे यार, इतना अच्छा मूड है, प्लीज रो मत। कुछ कुछ होता है मुझ नचीत को। वो आंख दबाकर शरारत से बोला। तभी इनके कमरे का दरवाजा नॉक हुआ। भाभी, नाश्ते के लिए आ जाएं, सब नीचे इंतजार कर रहे हैं आप दोनों का। हानिया ने बाहर से ही मुंतहा को पैगाम दिया। जी हम आ रहे हैं। हानिया चली गई। नहीं, हम नहीं आ रहे, जरीत खान शरारत से बोला। मुंतहा ने जल्दी से उसके लबों पर हाथ रखकर घूर कर उसे देखा। चुप करें, फ्रेश हो जाएं, फिर नीचे चलते हैं। वो बिना उसे कुछ बोलने का मौका दिए ड्रेसिंग रूम में घुस गई। जरीत खान उसकी पुश्त को देखते मुस्कुराया। अगर औरत मोहब्बत में उस्ताद है तो मर्द उसकी शागिर्दगी में रह कर उसे मोहब्बत सिखाता है। चीजें पुरानी हो जाती हैं, गल जाती हैं। हुस्न आखिर अपनी कशिश खो देता है, लोग बूढ़े हो जाते हैं। वाहिद अमल मोहब्बत है जो कभी बूढ़ी नहीं होती। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं कल आऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।